फर्स्ट टाइम लाहौर में 1500 फेलोज़ को फेलोशिप अवार्ड की जा रही है। आई थिंक दिस द लार्जेस्ट कन्वोकेशन ऑफ द सिटी ऑफ लाहौर। और सिमिलरली मिड जनवरी में वी आर गोइंग टू हैव द इंटरनेशनल मेडिकल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, और उसमें पूरी दुनिया पार्टिसिपेट कर रही है। उसकी थोड़ी सी अपडेट थी और कुछ इंटरनेशनल गुड न्यूज़ थी, तो मैंने कहा आपसे शेयर करता जाऊँ। सो कमिंग टू द CPSP recent updates, and we all know this is the main building of the College of Physicians Surgeons established 1962, और इसके ग्रीन लॉन्स फूल आपके सामने हैं। और जो मेन फंक्शन कॉलेज का है, इसमें टीचिंग है, ट्रेनिंग है, एक्रेडिटेशन ऑफ द हॉस्पिटल है, डिग्री को अवॉर्ड करना है, और मॉनिटरिंग प्रोफेशनल ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दोनों की। The college current counsel Professor Shoaib Shafi is leading, and along with him Vice President, myself, and Khalid Ashrafi and other members. This is the current statistic of the college. So far, college has produced over 43,000 specialists, 32,000 plus they are the fellows, and 11,000 plus they are the members. And currently, college is having the maximum number of postgraduate program. They are 79. First fellowship program 45, and the rest are the second fellowship program. First fellowship program is of 4 to 5 year, and second is plus 2 years, like 7 year. And similarly, the membership program in 22 different disciplines. As far as the first fellowship program, the detail is in front of you. 45 fellowship program. I don't want to go into the details of all these things because of the time constraint. And these are the second fellowship program, which start from the breast surgery, and recently we have started the second fellowship program in the transplant surgery and the spinal surgery. But this is the detail, and that is available on the website of the College of Physicians. Membership program is basically the mid-term specialist, mid-level specialist, which can provide the quality health service at the level of the Tehsil headquarters and the district headquarters. Now coming back to the Lahore statistics, I have skipped the provincial statistics. Currently in Lahore, the 58 institutions they are recognized, and we have got more than 1,000 supervisor and 6,400 the trainee. They are in the training process in these institutions. These are the various cities where CPSP training is going on. We start from the Bahawalpur until the Sialkot, and this is the Lahore statistics. Lahore is 41%. This is the ratio of the supervisor of the trainee. Generally, we say one supervisor can accommodate 8. So on an average, the Lahore, this ratio is 6.4. Like 1,000 plus are the supervisor and 6,400 are the trainee. Now, the regional setup of the college, we have got the 14 regional center and 4 sub-center. And these are having in all the provinces. और यहाँ थोड़ा सा मैं अपने फेलोज और ट्रेनीज और सुपरवाइजर के लिए ऐड करता चलूँ कि 2007 में दैट टाइम Blosa we had got the 7 center, and the 8th center was in Quetta, and then Hyderabad, then Abbottabad, and then Bahawalpur, and we have now established a center in Gilgit and Baltistan. और जो एग्जिस्टिंग सेंटर थे उन तमाम की कैपेसिटी बिल्डिंग की गई, स्ट्रक्चर उनका डबल ट्रिपल किया गया, जिसमें वी इफ़ वी स्टार्ट फ्राम दी कराची हेडक्वार्टर, फिर कमिंग बैक टू द साउथ पंजाब, मुल्तान का दौर साहब ने सेंटर देखा, अब 3 गुना, इसी तरह लाहौर की एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, पेशावर का एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, इन तमाम, और इस्लामाबाद का एक्सटेंशन प्रोजेक्ट दैट इज़ गोइंग ऑन। ये तमाम सेंटर्स के एक्सटेंशन प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए, नए सेंटर बने, एंड बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी इन द करंट फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ द कंट्री, the college has not raised a single penny fees in the workshop, in the examination or in the other emoluments. और मैं ये समझता हूँ कि ये जितने ऑलरेडी हमारे पास इनकम आ रही है उसकी माइक्रो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इतनी बरकत है कि नए सेंटर भी बन रहे हैं, वीडियो कनेक्टिविटी है, इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ भी जारी हैं, एंड इंशाल्लाह वी प्लान दैट वी आर नॉट गोइंग टू इंक्रीज द एग्जामिनेशन और द वर्कशॉप फीस टू नेक्स्ट 4 years टू। अब लोग हमसे पूछते हैं कि पैसे किधर से आ रहे हैं। 59 का डॉलर था 2007 में, और आज डॉलर को तलाश करते फिर रहे हैं। लेकिन और यू नो दिस थिंग, कॉलेज इज़ नॉट टेकिंग अ सिंगल पेनी फ्रॉम प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट। ये सारी वो जो पैसे 7,500 आपके वर्कशॉप के,
वो 15,000 एग्जामिनेशन फ़ीस, और ये पहली जमात के बच्चे की फ़ीस है। लेकिन इसमें बरकत इतनी है कि सेंटर भी बन रहे हैं, इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ भी हैं, और अगले 4 साल तक हमारे पास इतना रिज़र्व है कि इफ़ वी डू नॉट रेज द फीस, एंड वी विल नॉट रेज द फी, एंड इंशाल्लाह द एक्टिविटीज़ दे विल बी गोइंग ऑन। कि आपसे मैंने इंटरनेशनल अपडेट्स की तरफ शेयर करना था। वी हैड इनिशियली द सेंटर इन सऊदी अरेबिया एंड देन द नेपाल। ये 2 सेंटर हमारे एक्टिव थे। इनको स्ट्रेंथन फर्दर करने के साथ साथ वी हैव नाउ इस्टेब्लिश अ सेंटर इन आयरलैंड एंड बर्मिंघम, और बर्मिंघम का अपना हमारा सेंटर है, और हमारे इंटरनेशनल एग्जामिनेशन इसका बर्मिंघम सेंटर पे स्टार्ट हो चुके हैं। एंड अनदर थिंग इज़ द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। As these center they are have got the video connectivity since 2008, and we are using this for the various activity like faculty meeting and others. और चूँकि आज आपके इंस्पेक्शंस में जो एक यूरो गायनी की स्पेशलिटी है, तो गायनी के फील्ड में वी हैव इंट्रोड्यूस 4 न्यू सब स्पेशलिटीज, जिसमें यूरो है, गायनोकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजी है, इनफर्टिलिटी है, फीटल मेडिसिन है, और इसमें एक कंट्रीब्यूशन जो डिफरेंट सेंटर्स की हो रही है। One of the contribution from my institution is the establishment of MCH center, 550 beds, and we have created 4 chairs, professorial chair, and inshallah we are going to start these subspecialty in the field of gynae, और इसी तरीके से हर स्पेशलिटी की आगे फर्दर एक्सपेंशन प्रोग्राम जारी है। That is why in 2007 we had the 54 postgraduate program, and currently we are having the 79. International collaboration we have got with the all country, but the principle of collaboration that includes reciprocity, वो हमें मानेंगे, हम उनको मानेंगे। Then accreditation. If we are sending our trainee to the Ireland and the UK, then we accredit the institution the way we are accrediting this Shalimar Hospital. We don't allow, or we ask them, our trainee should not work in the institution which is not recognized by your royal colleges. सो आयरलैंड और यूके में जो ट्रेनी हमारे काम कर रहे हैं, उनकी एक्रेडिटेशन बाय CPSP। देन अनदर थिंग विच वी हैव स्टार्टेड इज़ द एक्सचेंज ऑफ एग्जामिनर। इस वक्त जितने हमारे इम्तिहान हो रहे हैं, 90% में फॉरेन एग्जामिनर आ रहे हैं। अभी एंडो का इम्तिहान था, इसमें प्रोफेसर शैलट आए, और एक्सचेंज ऑफ एग्जामिनर पहले यूनिलेटरल था, उनके एग्जामिनर हम मंगवाते थे, लेकिन अब हमने कहा है कि जहाँ से एग्जामिनर आएंगे हमारे लोग वहाँ का इम्तिहान लेंगे। तो अभी रात ही ईमेल रिसीव मुझे हुई है जिसमें इंटर कॉलेजिएट एग्जामिनेशन ऑफ द रॉयल कॉलेज, इसमें हमारे यूरोलॉजी में और ENT में उन्होंने दे हैव इन्वाइटेड द एग्जामिनर्स ऑफ CPSP। इसका फ़ायदा ये होता है कि एक स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन का आपका एक बायलैटरली इंप्रूव होता है, एंड दिस इज अ विन विन सिचुएशन ऑन बोथ साइड। सऊदी अरब की जहाँ तक बात है, हमारा 2008 MOU और आपकी क्वालिफिकेशन के साथ वो स्पेशलिस्ट लेते हैं 5 साल तजर्बे के साथ, आई थिंक दे टेक एज द कंसल्टेंट। ये जुलाई की हमारी मीटिंग है, और इसमें एक बायलैटरल कोलैबोरेशन की बात हुई। एक स्पेशलिटी जिसमें थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम है, दैट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ द फैमिली मेडिसिन। सो वी आर इन कोलैबोरेशन विद रॉयल ऑस्ट्रेलियन कॉलेज ऑफ जनरल प्रैक्टिशनर टू स्ट्रेंथन द स्पेशलिटी ऑफ फैमिली मेडिसिन। देयर आर 2 इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम जो हम समझते हैं कि आर द प्राइड ऑफ CPSP। वन इज़ विद द आयरलैंड कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन एंड हेल्थ सर्विसेज एग्जीक्यूटिव, and second is with the different institution of UK. इसका 510 training, 13 different specialties में they have gone to the Ireland for 2 years of training। और ट्रेनिंग के लिए important ये है कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। यू हैव डन द पार्ट 1, आपने 2 साल ट्रेनिंग की हो, आपने IMM क्लियर किया हो, इंग्लिश में आपका 7+ स्कोर हो, तो 13 डिफरेंट डिसिप्लिन में आयरलैंड में आप अप्लाई कर सकते हैं। शर्त ये है कि आपको 2 साल के बाद पाकिस्तान वापस आना पड़ेगा, क्योंकि वी डोंट बिलीव इन द ब्रेन ड्रेन। सो दिस स्कीम वाज गिवन द नेम ऑफ ब्रेन गेन। वापस आके अपने मुल्क सर्व करें, 2-3 साल के बाद आप दोबारा जा सकते हैं। आपको पैसे वही मिलेंगे जो अपने वो गोरे लोगों को देते हैं। गुड इन्वायरमेंट, गुड टेक्नोलॉजी में आप काम करते हैं, यू लर्न द एथिकल प्रैक्टिसेस एंड प्रोफेशनलिज्म। और इस स्कीम को हमने स्टार्ट किया था इन 2011, और 13 में पहला बैच गया था, और अभी जो लास्ट इंडक्शन में 49 लोग गए। और ब्यूटी ऑफ दिस स्कीम इज़ कि जो हम भेज रहे हैं इसमें रिटर्न रेट इज़ ओवर 95%। और जिस तरीके से आज आपके साथ मेरी बात हो रही है, इसी तरीके से आफ्टर एवरी 6 मंथ्स हमारी स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग होती है, इदारों की एक्रेडिटेशन को हम रिव्यू करते हैं, सुपरवाइज़र जो फीडबैक थ्रू ई-लॉग दे रहे हैं उसको रिव्यू करते हैं,
और ये ई लॉक के बारे में जो फीडबैक दिया गया इसकी प्रेजेंटेशन है। एंड आई थिंक द CPSP ई लॉक सिस्टम इज़ वन ऑफ द इनोवेशन जिसको दुनिया ने रिकग्नाइज किया। वी हैव नॉट कॉपीड दैट। आप तमाम सुपरवाइजर हैं, यू हैव गॉट ID पासवर्ड ट्रेनिंग, दे हैव गॉट द ID पासवर्ड। परफेक्शन नहीं होगी लेकिन बहरहाल एक सिस्टम है, और इस सिस्टम के बारे में जब हमें प्रेजेंटेशन दी एंड वी हैव टोल्ड देम कि हमारे ये 30,000 ट्रेनिंग तमाम का रिकॉर्ड क्लिक पे मौजूद है, सुपरवाइज़र तमाम का रिकॉर्ड मौजूद है। एंड दे वर वेरी हैप्पी टू सी कि एक कॉलेज जिसकी कंट्री वाइज जुरिस्डिक्शन है, चारों सूबे हैं, पब्लिक प्राइवेट आर्म फोर्सेस है। फिर LS मेगॉर्मन ने लिखा कि डियर प्रोफेसर गोंदर, आई विश टू लेट यू नो अबाउट योर रिस्पॉन्स ऑफ द ई-लॉक सिस्टम, जो उनकी हेल्थ सर्विसेज की चीफ थी। बाई colleague here in NDTP along with the training body colleague were hugely impressed. They all are saying we should introduce something similar. At least एक डेवलप कंट्री के लोग ये कह रहे हैं कि जो डेवलपिंग कंट्री ने एक चीज़ स्टार्ट की है इसको हम रेप्लिकेट करें, कॉपी करें। क्यों? कि आपकी स्ट्रक्चर ट्रेनिंग और यूनिफॉर्म मॉनिटरिंग है। दैट कुड बी यूज फॉर ऑल द ट्रेनिंग बॉडीज। एट प्रेजेंट ऑल ट्रेनिंग बॉडी यूज अ डिफरेंट सिस्टम, दे कैन नॉट टॉक टू वन अनदर। दे ऑल आस्क मी टू पास ऑन देयर कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू एंड टू योर कॉलेज। तो मैं ये समझता हूँ ये जो मुबारकबाद है ये कॉलेज या उसकी काउंसिल को नहीं है, ये आप लोगों को मुबारकबाद है, ये इन सुपरवाइज़र को मुबारकबाद है, ये इन ट्रेनिंग को मुबारकबाद है। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट स्लाइड ऑफ एग्जिट कोहार्ट। आम तौर पे बाहर जाके वापस आना मुश्किल होता है, या शादियाँ हो जाती है या वो गायब हो जाती हैं। लेकिन दिस इज़ द कंट्रोल ऑफ CPSP के 2019 में 51 जो गए हैं, 49 दे हैव रिपोर्टेड बैक, और बाकी 2 को हम ये कह रहे हैं कि आप आ जाएं, वरना पार्ट 1 ट्रेनिंग और इम्तिहान आपका कैंसिल हो जाएगा। क्यों? अगर सर्कल नहीं चलेगा तो नए लोग नहीं जा सकेंगे। सो 100% पीपल हैव टू रिपोर्ट बैक। एंड दिस इज़ आवर रेगुलर मीटिंग जो अभी जुलाई 2022 की मीटिंग हुई थी, और WHO ने जो पेपर इस पे बारे में लिखा उसने इस स्कीम का नाम दिया कि दिस इज़ वन ऑफ द रोल मॉडल एंड आइडियल स्कीम, एंड द नेम गिवन वाज ब्रेन गेन एंड नॉट द ब्रेन ड्रेन। आयरलैंड के बाद फिर UK में जूनियर फेलोशिप स्कीम को हमने कंटिन्यू किया, लेकिन यहाँ जितने यंगस्टर फेलोज़ बैठे इन्होंने कहा कि आप ट्रेनिंग के लिए तो कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग फॉर द फेलोज़। तो हम सीनियर फेलोशिप स्कीम लेके आए कि आप FCPS के बाद साल 2 साल जाएं एंड दे विल अपॉइंट यू एट द रजिस्ट्रार। 510 ट्रेनी जो आयरलैंड गए हैं इनका वीज़ा यहाँ डिलीवर होता है, पैसे उतने मिलते हैं जितने गोरों को देते हैं, और आयरिश मेडिकल काउंसिल की रजिस्ट्रेशन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इस वक्त जो UK में लोग जा रहे हैं सेम थिंग कि उनको पाउंड्स में पैसे मिलते हैं, वीज़ा यहाँ डिलीवर होता है, और जो GMC की रजिस्ट्रेशन है दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ CPSP। कोई तस्करा करता है कि CPSP की जो ट्रेनिंग स्कीम्स हैं या डिग्रीज़ हैं इनकी GMC रजिस्ट्रेशन का क्वेश्चन मार्क पिछले दिनों में किया गया। ऑल दोज ट्रेनीज एंड फेलोज विच आर गोइंग थ्रू द CPSP उसकी रजिस्ट्रेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ CPSP। ये इंटरव्यू हैं जो लास्ट इंटरव्यू हुए। तरीक़ाकार फॉर ट्रेनी, जो ट्रेनी इस हाल में मौजूद हैं कि 30+ स्पेशलिटी इन UK, 13+ इन आयरलैंड, वेबसाइट पे मौजूद है। जो सीट वेकेंट होती हैं दे इन्फॉर्म अस, हम वेब पे डालते हैं, आपका CV मंगाते हैं, आपका CV डायरेक्ट वो लोग एनालाइज करते हैं। एक सीट के अगेंस्ट 3 लोगों का इंटरव्यू होता है, एंड सिलेक्शन इज डायरेक्टली बाय द रॉयल कॉलेजेस आर देयर रिप्रेजेंटेटिव। देयर इज एब्सोल्युटली नो रोल ऑफ एनी काउंसलर और CPSP पर्सन। फिर आप लोग वहाँ जाते हैं, यू आर द एम्बेसडर, और आपका फीडबैक इतना अच्छा है कि अभी कल रात मुझे उन्होंने कहा कि UK में देयर आर 3 अदर इंस्टीट्यूशन who have contacted our regional director कि जी CPSP की स्कीम इनके साथ MOU हम साइन करना चाहते हैं, we wanted to invite the trainee of CPSP। सर ख्वाजा साहब मेरे उस्ताद और रियाज बलोच साहब मौजूद हैं। इस वक्त UK में जो हमारे इंस्टीट्यूशन है इसमें 386 बच्चे गए हैं, और जाहिर है जब UK में आप काम कर रहे हैं तो GMC की रजिस्ट्रेशन के बगैर कैसे काम कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी बर्मिंघम में 241 है, फिर वालसैल है, लीड्स है, हल एंड यॉर्कशायर है। और यहाँ जो अच्छी खबर मैं शेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ, एक वक्त था कि जब UK के लोग यहाँ इम्तिहान लेने आते थे तो अखबार में ख़बर लगती थी कि इम्तिहान हो रहा है, और आज एक वक्त आया कि 14 अगस्त का दिन जो हमारा इंडिपेंडेंस डे का डे है 2022, आपका ये डेलीगेट वी वर इन द UK, और यहाँ पे बर्मिंघम के अंदर एक खूबसूरत इमारत CPSP ओन कर रही है, और इनाग्रेट किया गया कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन बर्मिंघम सेंटर। और वो 14 अगस्त का दिन हमने भी कहा कि जी पाकिस्तानी लिबास हो, पाकिस्तानी झंडा हो,
और दरमियान में इस वक्त वो क्वीन के रिप्रेजेंटेटिव गवर्नर मौजूद हैं, रॉयल कॉलेज के सारे प्रेसिडेंट उनके नुमाइंदे मौजूद हैं, लोकल मेयर मौजूद है। और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये बिल्डिंग कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन की अपनी बिल्डिंग, अपना सेंटर, इनाग्रेशन एंड द फंक्शन इज़ गोइंग ऑन। और फिर इसी सेंटर पे वी हैव नाउ स्टार्टेड द एग्जामिनेशन। Now coming back to the activities of CPSV 2022, 2020 और 2021 में बिकॉज ऑफ द कोविड एक्टिविटीज़ हम नहीं कर सके, तो 2022 में जितनी पेंडिंग एक्टिविटी दे आर ऑन नाउ ऑन। इसमें मेन चीज़ थी कि कॉन्वोकेशन नहीं हो सकी थी। कॉन्वोकेशन फिर हमने स्टार्ट की, कराची, इस्लामाबाद हुई, पेशावर हुई, और इससे लास्टली जो हमारी दिस वाज दी कॉन्वोकेशन एबटाबाद की कॉन्वोकेशन थी। एबटाबाद की कॉन्वोकेशन में सर्जन जनरल पाकिस्तान आर्मी की तशरीफ़ लाई, फर्स्ट लेफ्टिनेंट जनरल थी। इसके बाद हैदराबाद की कॉन्वोकेशन हुई, और नेचुरली हर कॉन्वोकेशन से पहले इंटरेक्शन होता है विद द फेलोज़, एंड आई थिंक जनरल द फीडबैक इज़ वेरी सेटिस्फैक्ट्री। दिस द कॉन्वोकेशन जो लास्ट मंथ हमारी हैदराबाद में हुई, और इसमें द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द फेलोज़ एंड द इंस्टीट्यूशन दैट वाज देयर। और देन फाइनली वी हैड द कॉन्वोकेशन 2 हफ्ते पहले फैसलाबाद की कॉन्वोकेशन से पहले भी फेलोज से इंटरेक्शन, कॉन्वोकेशन। और फिर अब हमने कहा कि हमारे फेलोज़ की माकूल तादाद हो चुकी है पाकिस्तान से बाहर भी। इंस्टेड ऑफ कॉलिंग देम इन पाकिस्तान, नाउ वी हैव स्टार्टेड द कॉन्वोकेशन एट आवर इंटरनेशनल सेंटर, और इसका आगाज़ नेपाल से हुआ। नेपाल की कॉन्वोकेशन हो चुकी है, और नेक्स्ट इंशाल्लाह सऊदी अरब होगी। और मज़े की बात यह है कि जितनी इंटरनेशनल एक्टिविटी के एक्सपेंसेस हैं, इनका बर्डन आप लोगों पे नहीं है। आवर लोकल सेंटर दे आर जनरेटिंग द फंड्स, और वो जितने हमारे फॉरेन एग्जामिनर आ रहे हैं वो भी, और जितनी इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ हैं, इनकी एक्सपेंसेस, इनके अखराजात दे आर बीइंग मेट विद फ्राम द इनकम जो कि इन्हीं सेंटर से हम जनरेट कर रहे हैं। नाउ कमिंग बैक टू द लाहौर एक्टिविटी, आप जितने हमारे ऑनरेबल मेंबर्स, हमारे फेलोज़ और जितने टीचर्स बैठे हैं, यू ऑल आर इन्वाइटेड ऑन 27th। वी आर गोइंग टू हैव द 55th कॉन्वोकेशन लाहौर कंपोनेंट। ये 26th और 7th ये हमारी एक्टिविटीज़ हैं। 27th को मॉर्निंग में 20 फेलोज़ के लिए कॉन्वोकेशन है, और आफ्टरनून में 2021 के लिए, और हेड ऑफ़ द प्रोविंस दे आर गोइंग टू बी द चीफ गेस्ट। ये वो डिटेल है, अगर किसी को कार्ड नहीं पहुंचा तो इसी को कार्ड समझते हुए यू ऑल आर इन्वाइटेड फॉर दैट। और अगर इसमें आप में से कोई ऐसे फेलोज़ मौजूद हैं जिनकी कॉन्वोकेशन है, तो उसकी तफसील ये है कि चूँकि ये बहुत बड़ी कॉन्वोकेशन है, 1500 से ज़्यादा इसमें फेलोज़ को डिग्री अवार्ड की जा रही है, तो गाउन डिस्ट्रीब्यूशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्राम टुमारो। कल से गाउन डिस्ट्रीब्यूशन है, और 26 और 5th गाउन डिस्ट्रीब्यूशन। 26 आफ्टरनून जो है वी आर गोइंग टू हैव द रिहर्सल ऑफ द कॉन्वोकेशन, एंड 27th मॉर्निंग 2022 के फेलोज़ और 2021 के फेलोज़ के लिए आफ्टरनून कॉन्वोकेशन। नेक्स्ट एक्टिविटी ये है, दिस इज़ द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मेडिकल एजुकेशन बाय CPSP। 2012 में हमने तमाम रॉयल कॉलेजेस को इनवाइट किया। अब 13 और 14 जनवरी इसमें भी आप सब इनवाइटेड हैं। अगर कराची आ सकें तो बहुत बेहतर, अदरवाइज कराची विल बी कनेक्टेड विद द लाहौर सेंटर, so you can have and participate in all the activity. 12th is the day for the convocation, 13th and 14th that is the day for the various activity. इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मेन कोलैबोरेशन है विद द कॉलेज ऑफ मेडिसिन साउथ अफ्रीका। अभी हम हो के आए 1 के महीना पहले, और आप बिलीव करें प्रोफेसर फेगन जो उनका प्रेसिडेंट था, जब हमारी डिफरेंट मीटिंग हुई, अगले 2-3 स्लाइडें मैं शेयर भी करने लगा हूँ, उसने एंड पे कहा वी कुड नेवर इमेजिन कि साउथ एशिया में, पाकिस्तान में एक ऐसा कॉलेज है जिसमें ये एक्टिविटीज़ जा रही हैं। तो हमने जब उनको इनवाइट किया, उनका वी विल लव टू कम। उनके 29 आगे कॉलेजेस हैं, तो दे ऑल वर रेडी टू कम टू पाकिस्तान। तो हमने कहा नहीं, जो आपके 5 सीनियर हैं वी विल होस्ट देम, एंड दे आर कमिंग टू पाकिस्तान अलॉन्ग विद ऑल दी, आई थिंक मोर देन 20 the royal colleges are their representative. They are going to participate in that conference. Now coming back to the statistic of examination, we are going to have the I think examination on every day. 278 के करीब हमारे एग्जामिनेशन है, और एक ब्यूटी ये है कि पहले शुरू में पेपर बेस था हमारा इम्तिहान। अब पेपर बेस में स्कोटी रीजन्स, नेपाल, सऊदी अरब, हर सेंटर पे एक वक्त में इम्तिहान होना, पेपर शिफ्ट कराना मुश्किल था। So we have shifted now to the online examination. पहले part 1 ऑनलाइन, फिर इंटरमीडिएट ऑनलाइन,
अब पार्ट 2 भी कुछ सब्जेक्ट में ऑनलाइन और फिर MCQ पे शिफ्ट कर दी। अब इसका फ़ायदा ये है कि एक जगह पे बैठ के आप तमाम एग्जामिनेशन को मॉनिटर कर सकते हैं। कराची में सेंट्रल मॉनिटरिंग, लाहौर में मॉनिटरिंग, और इसमें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट अपने मोबाइल पे इन तमाम एग्जामिनेशन को मॉनिटर करते हैं। दीज आर दी नेशनल एग्जामिनेशन गोइंग ऑन एट वेरियस सेंटर, और तमाम जो हमारे इंटरनेशनल सेंटर हैं उन पे भी इम्तिहानात इस वक्त हो रहे हैं। और ये एक इम्तिहान है जो बर्मिंघम सेंटर का है। इसी तरह सऊदी अरब वाले हमारे बच्चे जो हैं वो सऊदी अरब में इम्तिहान ले रहे हैं। क्लिनिकल एग्जामिनेशन वहाँ स्टार्टेड है। इसमें इंटरनल एग्जामिनर हमारे, एक्सटर्नल उनके होते हैं। नेपाल में एग्जामिनेशन पेपर बेस, अब ऑनलाइन एग्जामिनेशन वहाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं। और एक और जो मैंने बात की, शेयर आपसे की थी कि एग्जामिनर पहले कोविड की वजह से एक्सचेंज ऑफ एग्जामिनर का प्रोग्राम विद परफेक्शन नहीं था। अब ये प्रोफेसर शैलट है, ही इज़ दी प्रोफेसर एमराइटस इन एंडोक्राइनोलॉजी। अभी 1 महीना पहले हमारा जो एंडोक्राइन का इम्तिहान था इसमें इनवाइट किया। बांग्लादेश से एग्जामिनर बुला रहे हैं, डेवलप वर्ल्ड से बुला रहे हैं, अमेरिका से बुला रहे हैं, UK से बुला रहे हैं। ऑलमोस्ट इन एवरी एग्जामिनेशन 1 या 2 बाहर के एग्जामिनर। और फिर अब यही नहीं कि हम सिर्फ उन्हीं को बुला रहे हैं। ये रात की ईमेल है जिसमें इंटर कॉलेजिएट स्पेशल एग्जामिनेशन इन यूरोलॉजी, CPSP आउटसाइड ऑब्जर्वर एंड एग्जामिनर। नीचे वो लिख रहे हैं कि नासिर औरकज़ई एंड अयाज शाह, ये हमारे 2 यूरोलॉजी के लोग हैं। यूरोलॉजी के लोग इनको जानते होंगे। 11th और 12th मई के एग्जामिनेशन में दे हैव बीन इनवाइटेड एज द एग्जामिनर एंड द ऑब्जर्वर ऑफ इंटर कॉलेजिएट एग्जामिनेशन ऑफ रॉयल कॉलेजेस। ये भी तो एक एजाज़ है ना कि आप लोग जाके रॉयल कॉलेज का इम्तिहान लेंगे। सो दिस इज़ अ विन विन सिचुएशन ऑन बोथ साइड। और जितनी हमारी एक्टिविटीज़ हैं दे आर एक्रीडेटेड बाय कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन की जो अमेरिकन काउंसिल है, और ये वेरियस प्राइजेज़ हैं। फ्यूचर वी एंड CPSP है, CPSP टू बी रिकग्नाइज्ड एज द इंटरनेशनल ट्रेनिंग एंड एडवाइजरी सेंटर इन द वर्ल्ड। CPSP has justified its claim to be the pioneer and custodian of postgraduate medical education, both within the country and the region. CPSP through standardized training, 360-degree monitoring, transparent assessment system, quality research and implementation of competency-based medical education, committed to provide world-class quality healthcare services to the ailing humanity. And finally, the CPSP greatest strength is not the example of power, but the power of our own example. Thank you, and thank you very much. बहुत शुक्रिया. Must appreciate Professor Khalid Kundal. Very informative lecture he is given, information he is given. बाद फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर होना भी एक बिल्कुल मुनफरिद एजाज़ है। And we as the class of 86 are proud of Professor Kundal that we are lucky to have with his class fellows. So I think Kundal साहब ने और इनकी टीम ने जो expansion की है in the CPSP and जो structure कायम किया है, this is something that we can all follow. And this is a learning opportunity जहाँ से हम learn कर सकते हैं कि कैसे चीज़ों को organize किया जाता है। And in spite of limited resources, हम as a nation कहते रहते हैं जी हमारे पास resources नहीं है, हमारे पास resources नहीं है, but this is an example जहाँ पे in spite of very limited resources, कोई government की funding नहीं है, कोई बाहर से funding नहीं है, they have made things happen. So ये एक I think बड़ा important हमारे पास सबक है कि जी we have the resources, उनको optimally utilize करने का। और फिर दूसरी बात जो खालिद साहब ने कही कि जब आपकी नीयत ठीक हो और आप अच्छे तरीके से काम करें तो हर चीज़ में बरकत आ जाती है। CPSP is a living example जहाँ पे इनकी हर चीज़ में बरकत आएगी। तो this again is something that we should learn। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास दुनिया के top notch resources हों and unlimited resources हों, but within these resources there is so much that can be done and that can be achieved। एक मेरी और गुजारिश है कि आपने देखा कि कॉलेज की डेवलपमेंट, सेंटर, नए सेंटर का बनना, एक्सटेंशन प्रोजेक्ट्स का होना, IT की डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ये तमाम उन्हीं फाइनेंसेस से है जो 2007 से जनरेट हो रही हैं, वर्कशॉप एग्जामिनेशन फीस। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इज़ फ्रॉम यू पीपल, योर एनुअल सब्सक्रिप्शन। सेक्रेटरी साहब वक्तन फ़वक्तन एनुअल सब्सक्रिप्शन के रिक्वेस्ट नोटिस इशू करते रहते हैं, और ये हाल ही में एक नोटिस इशू है। मेरी आप सब से गुजारिश है कि काइंडली आपकी जो एनुअल सब्सक्रिप्शन है वो रेगुलर सबमिट कराते रहें। और जिस अंदाज में स्टेबिलिटी है CPSP की, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इसमें बरकत आपके पैसों की है।
आपकी एनुअल सब्सक्रिप्शन की है, तो आप सबसे गुड स्टैंडिंग की गुजारिश है। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।